Hello, future officers. Welcome to D's Coded once again. Today we are going to take up the concept of HCF and LCM for UPSC Civil Services CSAT paper. Every year, approximately, you can say 2 to 3 questions are asked from this topic. Okay, so we'll understand the concept of HCF and LCM, and then we'll start solving the questions based on the same. Okay, so now let's begin. So before starting the HCF and LCM, we need to know one thing that what are factors? We have already talked about this in previous lectures that factors are numbers that divide a given number completely. For example, if I have 4, then the factors of 4 are 4 into 1, yani ki 4 comma 1 and 2 into 2. Now the factors of 4 are 4 comma 1 comma 2 and they can divide 4 completely. Dividing 4 completely means when 4 is divided by 4, 1 times 4, remainder is 0. Dividing completely means it leaves the remainder of 0. Similarly, when 1, 4 times 4, 0, remainder is 0. Similarly, for the case of 2, if I divide 4 by 2, 2 times 4, and your remainder is 0 over here. I hope this is clear to you. So, ladies and gentlemen, each of the number can be represented in the form of its prime factors. अब prime factors क्या हैं? Prime factors क्या हैं? Prime factors are key that we break a number in the form of 2, 3, 5, 7, 11, etc. Okay, these are prime factors. Getting my point? For example, if I have 4, then the prime factors of 4 are 2 into 2. Okay, if I have 6, then prime factors of 6 are 2 into 3. That means that when we break a number into such factors which are prime numbers, then those factors are known as prime factors. So in case of HCM and LCM, we'll use the prime factors only. जैसे कि for example, if I would be given a number, let's say 64, so I have to break 64 first into its prime factor. So basically 64 is 8 into 8. These are not prime. I have to write these 8 in the form of prime. So 2 into 2 into 2 is your 8. Further, 2 into 2 into 2. So the expansion of 64 in the form of prime factors is 2 to the power 1, 2, 3, 4, 5, 6. It is 6 times now. 2 is coming 6 times, so 2 to the power 6. That means 2 is multiplied 6 times. I hope this is clear to you. To find the HCF and LCM, we need prime factors. Still here we are clear. Now let's move on to LCM and HCF. So what is an LCM? LCM is the smallest number which is divisible by given numbers. Okay. तो LCM का मीनिंग होगा कि ऐसा एक नंबर जो कंप्लीटली डिवाइड हो पाए बोथ 2 से भी और 5 से भी. ओके, दैट वुड बी इट्स LCM एग्जांपल की फॉर्म में. ओके, एंड व्हाट वुड बी HCF? HCF is the largest number which can divide the given numbers. If you are given two numbers and that largest number which divides these two given numbers, let's say 2 and 5 completely, then that would be its HCF. I hope this is clear to you. तो LCM है सबसे छोटा नंबर जो कि दो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाएगा completely, तो वो उनका LCM है. And HCF is the biggest number which itself can divide the given two numbers. I hope the difference is clear. So form example में समझते हैं. Let's say I want to take the LCM of 2 and 5. Okay. So LCM of 2 and 5 would be 10 over here. ठीक है? Because it is divisible by both 2 and 5. Now I take the HCF of 2 and 5. So uh, this 2 can be written as 2 into 1 and 5 can be written as 5 into 1. So अगर इसमें देखोगे तो सिर्फ एक नंबर कॉमन है 1 जिससे ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं. तो लार्जेस्ट नंबर इज 1 विच कैन डिवाइड बोथ 2 एंड 5. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. इसको समझने के लिए अब फर्दर एक एग्जांपल लेते हैं. एलसीएम निकालना है हमें 25, 10 एंड 15 का. तो 25 को पहले प्राइम फैक्टर्स में तोड़ो. 5 into 5 is 25 into 1 and when you break 10 that is 2 into 5 and 15 is 5 into 3. So LCM इसका क्या होगा? LCM क्या है? सबसे छोटा नंबर
जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। तो इन दोनों से जब वो डिवाइड नंबर होगा तो जो इन सब के अंदर कॉमन फैक्टर्स हैं वो इसके अंदर आने चाहिए, ठीक है, बड़ी से बड़ी पावर भी। तो सबसे पहले क्या करो कि जो प्राइम फैक्टर्स की बड़ी बड़ी पावर, जैसे यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर 5 है उसकी सबसे बड़ी पावर क्या है 2, और दूसरा प्राइम फैक्टर है 2, उसकी सबसे बड़ी पावर क्या है 1, और तीसरा प्राइम फैक्टर 3, उसकी सबसे बड़ी पावर क्या है 3। तो इन सारी जो ये सारे प्राइम नंबर्स आपके पास आए हैं इनकी जो सबसे बड़ी बड़ी पावर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दो, आपका एलसीएम आ जाएगा। जैसे कि इसका एलसीएम होगा 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, दैट मीन्स 5 to the power 2, 2 and 3, that is 25 into 2 into 3, that is your 150. So in case of LCM, first what you need to do is you need to reduce it into the form of prime factors। और जो भी प्राइम फैक्टर्स है, जैसे प्राइम फैक्टर हो गए 2 3 5, उन प्राइम फैक्टर की जो सबसे हाईएस्ट पावर है, जैसे यहाँ पर हाईएस्ट पावर 5 वाले प्राइम फैक्टर की 2 है, तो 5 टू पावर 2 लेंगे। 2 वाले प्राइम फैक्टर की सिर्फ 1 है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 2 टू पावर 1 लेंगे, और 3 वाले की सिर्फ 3 टू पावर 1 है, तो इसका सिर्फ यही लेंगे, ठीक है। Now let's take now let's find out the HCF of these three numbers 25, 10 and 15। ठीक है, तो HCF क्या होता है? लार्जेस्ट नंबर जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर सके। इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करने वाला नंबर वही होगा जो इन तीनों में कॉमन आएगा। तो इसको लिखोगे 5 इंटू 5 इंटू 1, ये 2 इंटू 5 और 5 इंटू 3। इनमें सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जो तीनों में कॉमन है। वो तीनों में कॉमन क्या है? 5, 5 एंड 5। तो HCF इसका आपके पास 5 आएगा। आई होप दिस क्लियर टू यू। We have to find the largest number which divides 25, 10 and 15. So we have to find such a number that is common in all three, तभी तो divide हो पाएगा ना। Are you getting my point? So ये जो 5 अगर common ले लोगे, मतलब let see, in this 10 2 is also there, but this 2 cannot divide 25, okay। In this 15 3 is also there, but this 3 cannot divide 10 and 25, but this 5 can divide all three। So for finding HCF what you do is you just find the common number in between the three numbers। अगर कोई भी नहीं आ रहा है कॉमन तो उसका HCF सीधा का सीधा 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 हर एक में कॉमन आता है। और LCM के केस में क्या करना है कि जितने भी जो प्राइम फैक्टर्स आए उनकी जो सबसे बड़ी बड़ी पावर्स है उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, ओके। Now let's move on further how to find HCF and LCM for two numbers। Okay, I have two numbers 24 and 64। So the first thing we need to do is reduce this number into prime factors। तो 24 के प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। सबसे पहले 6 इंटू 4 की फॉर्म में तोड़ा, तो 6 को तोड़ोगे प्राइम फैक्टर्स में 2 इंटू 3। फर्दर यू ब्रेक 4, 2 इंटू 2। Now let's go on to 64। 64 is your 8 into your 8, then you have 8 as 2 into 2 into 2, okay। Then further 8 can be broken down as 2 into 2 into 2। सो इसको हमने प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लिया। दूसरा तरीका ये हो सकता है इसको तोड़ने का कि आप ऐसे लिख लीजिए 24। तो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर से शुरू करो 2 से, ठीक है। तो 2 से शुरू किया आपने, ठीक है। तो स्टार्ट विथ 2। सो 2 से आप डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या आएगा? 2 1 टाइम्स एंड 2 टाइम्स 2 एंड 2, देन इज योर 2 6 टाइम्स। क्वेश्चन लिखते जाना है यहाँ पे, क्वेश्चन जो आएगा 2 6 12, ठीक है। तो 2, देन योर 3 6, 3 आ गया। तो यहाँ पे अभी 2 से नहीं होगा तो 3 से होगा, तो 3 की टेबल में 1 टाइम्स तो 1, तो इसके हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, जो कि यहाँ पे सेम है, ओके। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ऐसे भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी आप वो कर सकते हैं। नाउ HCF is what? The largest number which can divide 24 and 64। तो उसके लिए क्या करना है? कॉमन ढूंढो। देखो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 3 टाइम्स, तो 2 टू द पावर 3। इसमें भी 2 कितने बार है? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, तो इसमें भी 2 3 टाइम्स आ गया। तो दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो है 2 3 टाइम्स। तो इसका HCF हो जाएगा आपका, जो ये कॉमन 2s आ रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ओके। Similarly, we'll go for the LCM। LCM is the smallest number which is divided by both of these numbers। तो उसके लिए क्या करना है आपको पता ही है कि जो भी प्राइम फैक्टर्स आपके पास आए हैं उनकी आपको हाईएस्ट पावर ले लेनी है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्राइम फैक्टर्स हैं 2 है एक और एक 3 है, और 3 की हाईएस्ट पावर है 3 टू द पावर 1, और 2 की हाईएस्ट पावर है 2 टू द पावर 6। तो आपका LCM हो गया मेरे पास 2 टू द पावर 6 इंटू योर 3। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। LCM is the smallest number which is divisible by both of these। तो अगर ये इन दोनों से डिविजिबल है तो ऐसा नंबर होगा जिसमें इन दोनों में से कोई ना कोई फैक्टर अवेलेबल होगा। तो एक इस वाले का 3 अवेलेबल हो गया, इस वाले का 2 टू द पावर 6
I hope this is clear to you. Now let's solve one another question. That is just 70. So first of all 70 को आप डिड्यूस कर लीजिए. 70 को you can write it down as 2 into 35, isn't it? You can write it down as further as 2 into 35 is 5 sevens are 5 and 7. Then 112 you can write it down as what? 56 into your 2. Then you can further break it down as your 50 112 को यहाँ लिख लो 112 2 times it gives you what? 5 10 times, then 1 gets carried over here, so 6 times. 56 into 2 is 112. Then 2 again, then you can write it down as 2 to the 4, 1 gets carried, 28, then 2, then 2 1 times, and 4 times, and 2 7 times, और 7 further 7 से ही जाएगा, तो यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 into 2, 4 times 2 है, and your 7. Okay. नाउ टू फाइंड द एचसीएफ व्हाट आई डू इज मैं कॉमन लेता हूं जो दोनों में है. इसमें 2 है एक बार, इसमें भी 2 एक बार है, इसमें 5 है, इसमें 5 है नहीं है, तो 5 को हम नहीं लेंगे. 7 है इसमें, इसमें भी 7 है, दोनों में 7 है, तो दोनों में क्या क्या कॉमन है? 2 कॉमन है और आपका 7. ठीक है. और 2 वन टाइम ही है, इसमें भी वन टाइम, इसमें 4 टाइम्स है पर 1 ही लेना है क्योंकि जो कॉमन है वो, तो एचसीएफ हो जाएगा आपका 2 into your 7, that is your 14. Now for LCM what you do is you take जो प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से अवेलेबल है, 2 है, 5 है एंड 7 है. 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पे देखो 4 टाइम्स आ रहा है, तो 2 to the power 4. 5 another prime factor, its highest power is 1, तो 5 to the power 1, और 7 भी 1 टाइम्स आ रहा है, तो ये इसका एलसीएम हो गया. आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ. सो नाउ लेट्स टेक टॉक अबाउट इफ वी आर गिवन 3 नंबर्स, कि 3 नंबर्स का कैसे आप निकालोगे. तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले 126 है. Again, break it into prime factors. That is your 3 into 3 into 7 into 2. Okay. 540, you again break it down into prime factors. It would give you 3 into 3 into your 3 into your 2 into 2 into your 5. इसको आप लिख सकते हो 3 to the power 3 into 2 to the power 2 into your 5. And your 630 can be written as your 3 into 3 9 into your 5 into 2 into 7. I hope this is clear to you. Now to find the HCF, that is would be the largest number which can divide all of these three numbers. तो वो ऐसा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर दे वो कौन सा होगा? जो इन तीनों में कॉमन होगा. तो कॉमन ढूंढना शुरू कीजिए. 3 सबसे पहले 2 को चेक करो, इसमें 2 वन टाइम है, इसमें भी इसमें 2 टू टाइम्स है पर वन टाइम ही कंसीडर करना होगा. ठीक है. इसमें 2 वन टाइम, तो वन टाइम ही कंसीडर, सबसे पहले 2 लिख दो. यहाँ पे आएगा आपका HCF 2 into, आगे देखते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट 3. 3 की पावर आई हैव 2 टाइम्स, तो इसमें 3 3 टाइम्स है, इसमें 2 टाइम्स है, तो 3 कॉमन वाला क्या होगा? सिर्फ 3 to the power 2. ओके. फर्दर नाउ वी हैव 5 ऑल्सो. 5 सिर्फ इसमें है, 540 में, दूसरों में नहीं है, तो 5 इज नॉट टेकन. 7 दो में है पर 540 में 7 हमारे पास नहीं आ रहा है कहीं भी, तो 7 को नहीं लेंगे. तो ये सिर्फ इसका यही हो जाएगा आपके पास जो HCF है कि 2 into 3 to the power 2, that would give me 2 into 9, that is your 18. Okay. नाउ टॉकिंग अबाउट एलसीएम. तो एलसीएम में हमें क्या करना होता है? वी नो कि जो भी प्राइम फैक्टर है उसकी मैक्सिमम पावर. सबसे पहले 2 की बात करते हैं. 2 की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है? यहाँ पे 2 टाइम्स आ रही है, तो 2 to the power 2. अब नेक्स्ट है 3. 3 की पावर मैक्सिमम 3 टाइम्स, तो 3 to the power 3. दूसरा है 5. 5 की पावर सिर्फ एक ही बार आ रही है, तो 5 to the power 1. जितने भी प्राइम फैक्टर्स मौजूद होंगे उनकी सबकी पावर देखनी है इसमें, फिर सिर्फ ये आ जाएगा इसमें. ठीक है. अब नाउ वी हैव अ alternative method also to find the HCF of these three numbers, 126 and your 540 and your 630. ठीक है. तो इस वाले मेथड में हमें क्या करना होता है कि जैसे कि ये तीन नंबर्स हैं, तो इनमें ऐसे पेयर हमें ढूंढना है. पेयर का मतलब कि जैसे दो नंबर्स को कंसीडर कर लिया जिसमें डिफरेंस मिनिमम हो. अब इसमें तो डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा आपस में, 540 और 126 में, एंड 630 और 126 में भी बहुत होगा. तो जिन दो नंबर्स में डिफरेंस सबसे कम होगा वो होगा 540 एंड 630. तो 630 माइनस योर 540 वुड गिव मी व्हाट? 90. नाउ 90 आपके पास आ गया यहाँ पर.
अब आप 90 को फैक्टर्स में तोड़ो, 90 इंटू वन, देन अनदर फैक्टर ऑफ 90s आर आपका 3 इंटू थ्री, 9 into 5 into 2. So it can be further written down as 18 into 5. This is, and further it can be written down as 45 into your 2. Now you see one thing, अब इसमें अब क्या करेंगे, अब आप चेक करो, अगर 90 से तीनों नंबर डिवाइड हो गए तो 90 इसका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट लार्जेस्ट नंबर को चेक करेंगे। देखो 90 से चेक करो, तो 90 से ये 126 नहीं हो रहा है पूरा, ये दोनों हो जा रहे हैं, ये हो जाएगा आपका 9, देखो 126 आप 90 से लो इसे, और 540 बाय 90 करो, एंड योर 630 बाय 90 यू डू। सो दिस इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल, ये कंप्लीटली डिविजिबल है 0 से 0, 9 वन 9, 9 6 9 54, 9 0 टाइम, एंड 7 9 63। तो 9 से ये 126 नहीं है पूरा डिविजिबल, और ये दोनों हैं तो ये नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ग्रेटेस्ट नंबर पे चेक करेंगे हम, दैट इज योर 45 ओवर हियर, जो नेक्स्ट ग्रेटेस्ट फैक्टर है 45 हो गया, ठीक है। 45 126 वुड नॉट बी डिविजिबल बाय 45, तो ये पहले ही कट गया, ये नहीं हो पाएगा क्योंकि 126 डिविजिबल ही नहीं है 45 से कंप्लीटली, तो 45 ये आंसर नहीं होगा। अब नेक्स्ट जो ग्रेटेस्ट है वो 18 है, 18 से चेक करते हैं, 126 divided by 18, and then your 540 divided by 18, and then your 630 divided by 18. Okay, this goes आपका 5 times, this goes 3 0, this goes your 70 आएगा पहले, फिर ये आपका 3 3 से फिर 35, तो ये तीनों डिविजिबल हो रहे हैं आपके 18 से। सो आपका यहाँ पे एचसीएफ 18 आ गया, और ऊपर भी हमारा एचसीएफ क्या आया था, 18। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। दिस इज एन ऑल्टरनेटिव मेथड। इन ऑल्टरनेटिव मेथड व्हाट यू डू इज, फर्स्ट यू फाइंड आउट टू पेयर्स जिनका जो डिफरेंस है वो मिनिमम आ जाए, ठीक है। फिर जो मिनिमम नंबर आया उसको आप फैक्टर्स में डिवाइड कर दो, उन फैक्टर्स में से जो ग्रेटेस्ट फैक्टर है जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर देगा वो ही आपके पास आंसर है, और यहाँ पर 18 आता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो नाउ विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका एचसीएफ एलसीएम दोनों निकालेंगे इसका, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज योर 200, okay, 200, and then 200 can be written down as 2 into 50 into 2. This can be further broken down as 2 into 5 into 2 into 5 into your 2. Then is your 235. This can be broken down as 47 into your 5. Okay. Now 47 is a prime number. It cannot be broken down further. Then you have 316. You can write it down as 79 into 2 into 2. Okay. तो अब इसमें वही है जो कॉमन है दोनों में आपके पास, ठीक है, वही आएगा आपके इसमें आंसर। ओके, देखिए अब 200 में अगर हम कंसीडर करें तो यहाँ तो वन सभी में आएगा, तो इन सब में सिर्फ देखो इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 नहीं आ रहा, एंड दिस 316 में ऑल्सो वी आर नॉट गेटिंग 2, तो 2 कैन नॉट बी टेकन अप। एंड देन फर्दर 5 दो में आ रहा है, दीज टू में 5 इज कमिंग एंड नॉट इन अदर, सो 5 इज ऑल्सो नॉट टेकन। एंड फर्दर फिर 47 है, 79 है, ये सिर्फ एक एक में ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब सिर्फ इसमें इन तीनों में सिर्फ एक ही कॉमन है जो है आपके पास 1। सो इसका एचसीएफ आपका 1 हो गया, ठीक है। एलसीएम के लिए कुछ नहीं करना, एलसीएम में तो आपको पता ही है कि अ, जो मैक्सिमम पावर्स हैं वो ले लो। 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 2 3, तो 2 टू द पावर 3 इंटू 5 आ रहा है, 5 की मैक्सिमम पावर 5 है, फिर 47 है उसकी 1 है, और फिर 79, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। So now we'll take solve this by alternative method, that is we have 200 and your 235 and your 316। Okay, so देखिए अब इसमें हमें डिफरेंस लेना है जो सबसे कम आ जाए, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस बहुत ज्यादा आएगा, सबसे कम इन्हीं दोनों का आएगा, 235 एंड 200, तो आपके पास आएगा 235 माइनस 200, दैट इज योर, ये माइनस है, इज इक्वल टू योर 35। नाउ 35 को ब्रेक करते हैं प्राइम फैक्टर्स में, 5 इंटू 7 इंटू 1। ओके, नाउ लेट्स चेक, 35 से ये 200 डिविजिबल होगा, 235 होगा, पर 316 नहीं होगा क्योंकि इसमें 5 कॉमन आएगा ही नहीं। 7 से जो है आपका सिर्फ 237 होगा, बाकी दोनों नहीं होंगे।
पर 1 से तीनों डिविजिबल हैं, तो जो ग्रेटेस्ट नंबर है जिससे तीनों डिविजिबल हैं वो 1, तो इसका एचसीएफ हो गया 1। अब एलसीएम का भी ना एक हमारे पास ऑल्टरनेटिव मेथड होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम को प्राइम कंसिडर करते हैं। को प्राइम का मतलब होता है ऐसे जो दो नंबर्स, को प्राइम मींस एनी टू नंबर्स विच हैव ओनली वन एज द कॉमन फैक्टर। ठीक है, एनी टू नंबर्स विच आर ओनली डिविजिबल बाय अ कॉमन फैक्टर दैट इज 1। ओके, सो और किसी से नहीं होने चाहिए, जैसे कि 200 एंड 235 है, इन दोनों में 5 आ जाएगा एक कॉमन ना। देखो आप 200 एंड 235 इन दोनों में 5 कॉमन आ गया, तो ये दोनों 5 से डिवाइड हो जाएंगे, तो ये को प्राइम नहीं हुए। पर अगर आप 235 और 236 को कंसीडर करते हो, तो इनमें जो कॉमन नंबर एक है वो है 1 ओनली, तो ये दोनों आपस में को प्राइम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें ऑल्टरनेटिव में क्या होता है कि जो ये दो को प्राइम नंबर्स आ गए, आप क्या करो, 235 इंटू 316, इन दोनों को प्राइम नंबर्स को एक साथ लिख दो यहाँ पर। अब को प्राइम के फैक्टर्स हैं 47 इंटू 5, एंड इसका है आपका 79 इंटू योर 2 टू द पावर 2। अब जितने भी ये 200 था ना अगला, इसमें जितने भी बच गए इनके अलावा, जैसे कि 47 आ गया, ऊपर 2 वाले में 5 आ रहा है, हाँ 5 आ रहा है, तो 5 एक बार आ गया ना यहाँ पर, 5 एक बार ही यहाँ आ गया है, तो अब 5 को सिर्फ वन टाइम ही लेना है हमने, क्योंकि यहाँ पे 200 को एक्सपैंड करोगे तो 5 टू टाइम्स आ रहा है। बट फिर क्या करेंगे, जब 5 एक बार ही यहाँ आ गया तो सिर्फ 5 एक ही बार लिखना है यहाँ पे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो 47 आ चुका है एक बार, 79 आ चुका है एक बार। ठीक है, अब 2 जो है वो आ गया है, हाँ 2 टू टाइम्स आ गया है। अब देखते हैं 2 टोटल कितनी टाइम्स है। 2 टोटल आपका 3 टाइम्स था, और यहाँ पे 2 ही बार आया, तो यहाँ पर फिर एक 2 को एक और बार लिख देंगे, तो आपका यही आंसर आएगा जो यहाँ से आया। देख लो कंसीडर करके, देखो यहाँ से वही आ गया 47 इंटू योर 5 इंटू योर 79 इंटू योर, यहाँ पे 2 की पावर एक थी, यहाँ 2 की पावर एक और आ गई, 2 की पावर 3 हो गया इंटू 5, तो यहाँ पे भी हमारे पास यही आया था 2 पावर 3 इंटू 5 इंटू 47 इंटू 5, और यहाँ भी यही आया 47 इंटू 5 इंटू 79 टू पावर 3 इंटू 5। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब थोड़े से और एग्जांपल्स देते हैं जरा एचसीएफ के। ठीक है, और दैट वुड अलाउ मी टू understand the concept in a better way. So we'll try to solve these questions in alternative method. अब देखो पेयर्स बनाना शुरू करते हैं। इन दोनों के पेयर का जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा आएगा, और 54 और 98 का तो और भी ज्यादा आएगा, तो जो कम आ सकता है वो है 54 और आपका 72 का। तो 72 माइनस योर 54 वुड यील्ड मी व्हाट, 18। ओके, नाउ अब 18 को तोड़ते हैं, 18 इंटू योर 1, then it can be your 6 into 3, then it can be your 9 into 2। अब सबसे बड़ा नंबर 18 है, 18 से चेक करो पहले, 54 को 18 से डिवाइड करते हैं, हमारे पास आंसर आता है क्या, 3 टाइम्स हो गया। 72 को 18 से डिवाइड करो, इज इट डिविजिबल, यस 4 टाइम्स हो गया। नाउ 198 को यू डिवाइड बाय 18, इट इज ऑल्सो डुएबल, 11 से आ रहा है। तो 18 सबसे बड़ा फैक्टर आ रहा है पहली बात, और इन तीनों को डिवाइड कर दिया है, सो आपका एचसीएफ आ जाएगा यहाँ सीधा का सीधा 18। सो ऑल्टरनेटिव मेथड से आपको क्लियर है। सबसे पहले हमें डिफरेंस लेना है, जो सबसे छोटा डिफरेंस है, उसके बाद उस डिफरेंस जो आया वो हमारा 18 आया, देन विल ब्रेक इट इनटू फैक्टर्स, not necessarily prime factors but into factors, and then among those factors we'll find the greatest number that can divide all three. Okay, I hope this is clear to you. Now let's make it more clear by moving further. Okay, तो अब देखते हैं। देखो 62 और 186 का डिफरेंस काफी ज्यादा आएगा, 62 और 279 का और भी ज्यादा, तो कम डिफरेंस आएगा 186 और 279 का। तो योर 279 माइनस योर 186, आई गेट व्हाट, आई गेट 93। 93 को नाउ मूव इनटू फैक्टर्स, 31 इंटू योर 3, यही आएगा इसका सर, और दूसरा आ जाएगा 93 इंटू 1। अब 93 से देखो ये सारे नहीं हो पाएंगे, ठीक है, क्योंकि 93 से 62 नहीं होगा, तो आपको 31 कंसीडर करना होगा। 31 से चेक करते हैं, 62 डिवाइड बाय 31, 186 divided by 31, and then your 279 divided by 31. So this gets cancelled out 2 times, this gets cancelled out 6 times, and this gets cancelled out 9 times। ठीक है, क्वेश्चन इसमें 2 आया, इसमें 6 आया, इसमें 9 आ गया, तो ये जो 31 है हमारे पास, ये तीनों को डिवाइड कर रहा है, तो इसका एचसीएफ हो गया आपके पास 31। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ विल फाइंड द LCM of
these three numbers using the alternative method. Alternative method में हमें क्या करना था कि को प्राइम ढूंढने थे हमें, ठीक है, को प्राइम नंबर्स जिनका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो, जो कि है आपके पास 1। तो देखो ये होगा 13 × 1, क्योंकि इसके दो ही फैक्टर है, प्राइम नंबर है। 23 × 1 ये भी प्राइम है। और 48 होगा आपका 6 × 8 is 48, तो यू कैन राइट डाउन 2 × 3 × 2 to the power 3 × 1। सो इनमें कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, इन तीनों में एक ही चीज कॉमन है जो कि 1 है, तो ये तीनों ही को प्राइम नंबर्स है। तो हमें अभी हमने देखा था कि जब को प्राइम नंबर है तो क्या करना है, को प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, 13 × 23 × 48। सो दिस इज योर LCM, because LCM is the smallest number which is divisible by all of these three numbers. I hope this is clear to you. So next, let's move further. ठीक है, हमें क्या करना है, को प्राइम चेक करना है। इन दोनों में देखो आप 23, 22 और 33 को लोगे, इसमें तो कॉमन फैक्टर 11 है, तो these are not co-prime. Then you move on to next number, that is your 33 and 45। इनमें सिर्फ एक ही चीज कॉमन है जो कि है 1, तो ये को प्राइम हो गए। तो आप क्या करो कि 33 × 45 लिख दो, सीधा का सीधा, ठीक है। ये 2 × योर 11, दिस इज योर 72। तो फिर 72 को लिख सकते हैं 36 × 2, फर्दर एक्सपैंड करोगे तो 2 to the power 3 × 3 to the power 2। अब 33 में देखो 3 × 11 एंड दिस इज योर 5 × 9, 5 9 45। तो आपका एलसीएम अब देखो, जो जो 33 × 45 तो पहले ही आ गया। अब इसमें आपके पास 11 ऑलरेडी मौजूद है, 11 वन टाइम्स आ गया है, तो अब 11 को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। इसमें चलते हैं, 5 इसमें वन टाइम आ गया, पर हमारे पास 5 और कहीं है नहीं, तो 5 एक बार आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 3 to the power 2 है, तो 3 टू टाइम्स आ चुका है, ठीक है। और हमारे पास 3 यहाँ पर भी 2 टाइम्स है, 3 ऑलरेडी 2 टाइम्स आ चुका है, 3 को दोबारा से लेने की जरूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं 2 के पास। तो 2 हमारे पास अभी तक नहीं आया है, और जो मैक्सिमम 2 है वो 2 to the power 3 है, तो 2 to the power यहाँ पे 3 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो दिस इज योर एलसीएम ऑफ द दिस। नाउ आप एप्लीकेशन की बात करते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एप्लीकेशन क्या है, बेसिकली जो एचसीएफ एंड एलसीएम है, इन दिस यू विल ऑलवेज बी फाइंडिंग द क्वेश्चन विच आर बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। एग्जाम्पल की फॉर्म में, लेट्स से आई हैव 3 cans of milk. One is having 50 liters of milk, another is having 60 liters of milk. एक मैंने माना 50 liters था, दूसरे में 60 liters मिल्क था, तीसरे में 70 liters मिल्क था। अब मुझे एक ऐसी बॉटल का साइज फाइंड करना है कि उसमें ये जो 50, 60 और 70 लीटर्स का मिल्क है ना, वो इक्वल अमाउंट में, मतलब वो ऐसी बॉटल का साइज फाइंड करना है जो इन तीनों को ऐसे अकोमोडेट कर ले कि तीनों की मतलब सारा का सारा दूध फिल हो जाए उन बॉटल्स में, ठीक है। एक ऐसा बॉटल का मेजरमेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो वो मेजरमेंट क्या होगा, जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा, इजंट इट, वही तो एचसीएफ होता है ना, जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है। तो एक मुझे ऐसी बॉटल का साइज चाहिए जिसमें जिस बॉटल से मैं, अगर मैं मिल्क फिल करना शुरू करूं, तो वो बॉटल्स में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और कोई भी मिल्क लेफ्ट नहीं बचेगा, और वो बॉटल जो है सारी की सारी भर जाएंगी। तो एक बॉटल का ऐसा साइज होना चाहिए पर्टिकुलर। वो साइज क्या होगा, वो साइज वो होगा जो इन तीनों को डिवाइड कर पाएगा, ऐसा लार्जेस्ट साइज, ठीक है। तो फिर उसके लिए वही करना होता है कि आप इसका एचसीएफ लो। तो 50 का एचसीएफ क्या आएगा आपके पास, 5 इंटू योर 2 × 5, और सॉरी, इन तीनों का एचसीएफ लेना है हमने। 60 का 2 × 3 6, देन इज योर 2 × 5, एंड देन 70 इज योर 7 × 2 × 5। नाउ कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे, 2 and 5, 2 and 5 एंड 2 and 5। तो इसका आंसर आ जाएगा एचसीएफ आपका 10। तो एक जो बॉटल है, अगर मैं 10 लीटर की एक बॉटल प्रिपेयर कर लूंगा, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 and देखो 7 तीनों में कॉमन नहीं है, सिर्फ इसमें है, तो 7 तो होगा नहीं। अब 3 इसमें है पर बाकी में 3 नहीं है, पर 2 and 5 तीनों में है, तो 10, 2 × 5 इज 10, तो एचसीएफ इज 10। तो वो जो बॉटल का साइज होगा वो होगा मेरे पास 10 लीटर का, जो इन पूरे के पूरे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने में मुझे हेल्प कर देगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था हमारे पास एचसीएफ का, कि आपको ऐसे ही लेना है इसमें। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं सिर्फ के एप्लीकेशन पे, जैसे बॉटल्स की बात करिए, अब दूसरे तरीके से ही अभी कह रहा है, देयर आर टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी एफ विद साइड्स 14 and 26 रिस्पेक्टिवली, ठीक है।
दो इक्वल ट्राइंगल है, एक की साइड 14 है, एक की 26 है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ टेप दैट कैन मेजर बोथ देम एग्जैक्टली। अब देखो एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड बोथ द टू नंबर्स। अब ऐसी एक टेप की लेंथ जो इन दोनों ट्राइंगल्स को मतलब नाप सके इक्वली। मतलब कि अगर आप नापना शुरू करोगे साइड्स को तो पूरी की पूरी साइड नप जाए, एक ऐसी टेप होनी चाहिए वो। तो वो टेप का लेंथ क्या होगी, वो टेप की लेंथ वो होगी जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर पाएगी, ग्रेटेस्ट नंबर ऐसा। तो उसके लिए क्या करना होता है, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालो, एचसीएफ ऑफ 14 इज 14 एंड 26 का एचसीएफ निकालना है। 14 को यू कैन राइट डाउन एज 2 into 7 and your 26 you can write it down as 13 into your 2, so common is 2 only। so आपका HCF 2 हो गया। तो अगर आप लेंथ ऑफ टेप को 2 ले लेंगे तो हर साइड को नाप देगी और कोई भी साइड में कुछ बचेगा नहीं। देखो अगर वो कॉमन नहीं होगा नंबर इसमें, तो ऐसा हो सकता है कि वो टेप जब नापना शुरू करेगी 14 को तो उसमें से थोड़ी सी साइड बच जाए, ठीक है। 26 में नापना शुरू करें तो उसमें थोड़ी साइड बच जाए। पर अगर आप ऐसी एक नंबर की टेप ले लोगे जो इन तीन दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करती हो, तो वो पूरी की पूरी साइड को नाप देगी। जैसे अगर ये 7 की साइड थी, 14 की थी, तो उस टेप को आपको 7 टाइम्स यूज करना पड़ेगा। 7 टाइम्स यूज कर लोगे तो वो नप जाएगी ये वाली साइड। और अगर आपके पास ये 26 की साइड वाला ट्राइंगल था समझ लीजिए, तो उससे क्या होगा कि वो 13 टाइम्स टेप जब नापेगी तो वो नप जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि टू आपकी लेंथ की टेप की लेंथ क्या है, 2 मीटर्स। आई होप दिस क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव ऑन फर्दर। ठीक है। अ गार्डनर वांट्स टू ब्यूटीफाई पीस ऑफ लैंड बाय प्लांटिंग ट्रीज इन इक्वल रोज। ठीक है, उसको इक्वल रोज लगानी है। ही हैज 50, 45 and 80 plants of roses, jasmine and marigold respectively. Further, he wants distinct rows of flowers. What is the minimum number of rows required to do so? देखो अब इसमें क्या कहना चाह रहा है कि इसके पास 50 तो हैं रोजेस, 45 जैस्मिन है एंड 80 मैरीगोल्ड है। और उसको ऐसी रोज बनानी है इनका साइज इक्वल हो और इतनी नंबर ऑफ रोज बन जाए कि सारे प्लांट लग जाए, और हर एक रो में मतलब हर एक रो में एक ही टाइप का प्लांट लगे। मतलब एक रो में जैसे आपके पास सिर्फ रोज ही हो, फिर जैस्मिन हो और मैरीगोल्ड हो, और नंबर ऑफ रोज मतलब जो साइज है रो का वो सेम होना चाहिए। तो रो का साइज सेम लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, एचसीएफ लेना है। ठीक है, तो साइज लाने के लिए मुझे पहले तो एचसीएफ लेना पड़ेगा किसका, 50, आपका 45 एंड 80 का। ठीक है। जब इसका जो कॉमन इनमें जो इक्वल साइज ऑफ रो कैसे बन सकती है, जो एक ऐसा नंबर सबसे बड़ा जो इन तीनों में कॉमन होगा, वही पॉसिबिलिटी दे सकता है ये वाली आपको, है ना। और नंबर ऑफ रोज फाइंड करने के लिए फिर आपको उस नंबर से इन तीनों को डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो फ्लावर्स इक्वल नंबर में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब आगे बात करते हैं, पहले इसका एचसीएफ निकालो 50 का। 5 into 2 into your 5, then your 45 HCF is your 5 into 9, 3 into 3, and then your 80, 80 को you can write down as 2 to the power 3 into your 2 into 5 is 10। ठीक है, तो कॉमन चेक करते हैं। 5 है इसमें, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, तो 2 हट गया। ठीक है, अब 3 इसमें है पर इन दोनों में नहीं है, तो सिर्फ हमारे पास 5 कॉमन आ रहा है। तो एक रो के अंदर 5 प्लांट्स ही लग पाएंगे। अब वो कह रहा है कि कितनी नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड है। तो नंबर ऑफ रोज के लिए क्या करना पड़ेगा कि एक रो में सिर्फ 5 प्लांट आ सकते हैं। तो अब ये 5 प्लांट आ सकते हैं, तो 50 प्लांट थे किसके, रोज के कितने प्लांट है, 50। तो रोज की कितनी रोज बनेंगी, 5 डिवाइडेड बाय 10। तो रोज रोज की बनेंगी 10 रोज। फिर जैस्मिन था आपके पास, जैस्मिन आपके पास 45 है, तो एक रो में 5 आ सकते हैं, तो 5 9 टाइम्स। फिर आपके पास मैरीगोल्ड है जो 80 है, तो आपको 5 से इसको फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप डिवाइड कर लो, 5 वन टाइम देन 3 गेट्स कैरिड एंड 6 5 जा 30 16। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ 10 प्लस 9 प्लस 16, जो कि आपके टोटल रोज हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके आ जाएगा 25 प्लस 10, इट वुड गिव यू 35 रोज। ओके, तो ये था आपका एचसीएफ का एप्लीकेशन। नाउ विल टॉक अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम। नाउ एलसीएम में क्या होता है कि ऐसा सबसे छोटा नंबर फाइंड करते हैं हम जो गिवन नंबर्स है हमारे पास उससे डिवाइड हो जाए। तो एलसीएम की एप्लीकेशन कहाँ आती है, समझ लीजिए कि तीन लोग एक रेस ट्रैक पे भाग रहे हैं, ए बी सी। ठीक है, एक रेस ट्रैक पर ये तीन एबीसी भाग रहे हैं। ए की स्पीड सबसे ज्यादा है, फिर बी की कम है, फिर सी की कम है। जब ये भागना शुरू करेंगे तो ए सबसे आगे निकल जाएगा, फिर बी पीछे रहेगा, सी सबसे पीछे रह जाएगा। तो
ठीक है, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि जब भागते भागते ए जो है वो सी को क्रॉस कर लेगा फिर से, फिर बी भी सी को क्रॉस कर लेगा। ठीक है, तो ऐसा होता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये तीनों एक पॉइंट पे मिलेंगे, कि ए बी, जैसे कि क्योंकि ए जो है सबसे तेज है तो वो क्रॉस करते करते बी को भी क्रॉस करेगा एक बारी, फिर सी को करेगा, फिर जो बी है वो सी को भी क्रॉस कर लेगा क्योंकि वो उससे तेज है। तो एक ना एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये तीनों आपस में मिलेंगे। तो जब हमें वो पॉइंट निकालना है कि ये कितने टाइम में मिलेंगे, तो वो एक ऐसा नंबर होना चाहिए ना कि वो तीनों से डिवाइड हो जाए। तो एक ऐसा नंबर जो तीनों से डिवाइड हो जाएगा वही एलसीएम होगा। ठीक है, तो जो भी नंबर इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा मतलब उसी पॉइंट पे जाके मिलेंगे, क्योंकि वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी, इसको भी। आई होप दिस क्लियर टू यू। तो एलसीएम का एप्लीकेशन यहाँ आता है। अब चेक करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, देयर आर फोर बेल्स दैट रिंग टुगेदर एट 10 पीएम। ठीक है, पहली बारी जो वो बेल्स हैं वो 10 बजे बजी हैं एक साथ। फर्दर दे रिंग आफ्टर 5, 10, 11 एंड 12 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स विल दे रिंग टुगेदर इन नेक्स्ट 2 आवर्स। देखो, चार बेल थी, एक साथ बजी 10 बजे। अब जो सबसे तेज चलने वाली बेल है वो हर 5 सेकंड बाद बजेगी। फिर जो उसके बाद वाली 10 में, फिर 11, फिर 12, वही वाला रेसर वाला है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये सारी की सारी एक साथ बजेंगी। जैसे कि 5 वाली है, जब 5 वाली 2 बार बदलेगी तो वो 10 वाली से मैच करेगी एक बार जाके। ठीक है, ऐसा होगा ना। फिर 10 वाली ऐसे, 11 से, फिर 12 वाली ऐसे। तो ये एक टाइम पे मैच करेंगे अपने आप को आकर। ठीक है, इजंट इट। सो वो नंबर कैसे निकलेगा, जो सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा ना, वही तो वो टाइम होगा। तो इसके लिए क्या करना होता है, एचसीएफ, एलसीएम सॉरी। तो एलसीएम निकालो। एलसीएम में 5, 5 into 1 कॉमन लो। 10 का आपके पास आ जाएगा 2 into 5। देन यू हैव 11। सो 11 का आपके पास आएगा 11 into your 1। एंड देन यू हैव व्हाट, यू हैव 12। 12 इज योर 3 into 2 into 2। अब देखो जो इसमें एलसीएम में क्या करते हैं, जो प्राइम नंबर की ग्रेटेस्ट पावर चेक करते जाओ। सबसे पहले आप 2 पे चलो, 2 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है, 3 टू 2 सॉरी 2 to the power 2। अब अगला है 5, 5 की 5 है। अगला है 11, 11 की 11 है। तो इसका ये है बस जैसे। ठीक है, फिर आपके पास एक 3 भी है, तो यहाँ पे आपके पास 3 भी आ जाएगा। तो ये आपका जो है आपको एक आंसर दे देगा, जो आपका हम निकाल लेते हैं। आ, ठीक है, सो 2 into 5 इज 10 इंटू योर आपका ये 3 into 2 6, तो योर 66। तो ये आपके पास आ जाएगा 660। सो 660 सेकेंड्स में वो दोबारा से एक साथ आपकी रिंग करेंगी। ओके, सो अब ये कह रहे हैं कि 2 आवर्स में कितने करेंगे। देखो, 1 आवर में आपके पास कितने सेकंड्स होते हैं, 3600। तो 2 आवर्स में कितने होंगे, 3600 इंटू योर 2 टाइम्स। तो वी हैव टू फाइंड कि 2 आवर्स में कितने बार बजेगी। तो हम इस वाले जो हमारे पास टाइम आया 660 सेकंड, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 3600 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 660, 0 0 कैंसिल, 6 11 टाइम्स, एंड देन योर 6 6 30। सो ये आपके पास आ जाएगा 120/11 सेकेंड्स। तो ये नेक्स्ट 2 आवर्स में, ठीक है, कितनी बार बजेगी आपकी, ये बजेगी सेकेंड्स नहीं सॉरी, 120/11, 120/11 टाइम्स ये आपकी बजेगी नेक्स्ट 2 आवर्स में। तो आपका आंसर है बी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूपीएससी में इसी टाइप का आता है, ये जो आपका ट्रैफिक सिग्नल वाला है, ये बेल वाला। इन ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स चेंज आफ्टर 36, 42 एंड 72 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली, आफ्टर हाउ मेनी टाइम विल दे चेंज साइमल्टेनियसली। ठीक है, वही वाली बात है रेसर वाली की, जो सबसे तेज है वो 36 वाला है, फिर बी वाला 42, फिर 72, फिर एक कॉमन आएगा जिसमें वो तीनों करेंगे एक साथ, और वो वैसा नंबर होगा जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, एलसीएम निकालना है आपको। एलसीएम निकालने के लिए आप 36 को लिख लो। ठीक है, 36 को यू राइट डाउन एज 2 into 3 into 2 into 3, then is your 72, you can write it down as 9 into 8, further simplify it as 2 into 3 to the power 3 into 3 to the power 2, then is your what, 42. Okay, 42 you can write it down as 6 into 7, then you can further reduce at 2 into 3 into 7। अब एलसीएम के लिए जो सबसे बड़ी पावर्स है उनको लेते जाओ, आंसर आता जाएगा। सबसे बड़ी पावर आपकी 2 की कितनी है, 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3। 3 की कितनी है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, एंड 7 की 7 है। तो आंसर आएगा आपका 50
504 सेकेंड्स। तो फिर आपका आंसर ए हो गया यहाँ 504 सेकेंड्स। अब आपके और क्वेश्चन लेते हैं जो एचसीएफ और एलसीएम में बेस्ड है आपके पास, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट दीज क्वेश्चंस। तो एक फॉर्मूला होता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू योर प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स, ठीक है। तो इसी को यूज करते हुए क्वेश्चन करना है। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज एक्स, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज एक्स, ठीक है, एंड एचसीएफ इज वाई। इफ वन नंबर इज ए देन द अनदर नंबर इज बी, इज बी क्या होगा? तो देखो हमें पता ही है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो आपका एक्स है क्या, एलसीएम, और x आपका एच y आपका एलसीएफ है। तो x इंटू वाई इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हैं a इंटू बी। तो आपको b फाइंड करना है, तो b आपका हो जाएगा x इंटू वाई डिवाइडेड बाई योर a। सो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं डायरेक्ट कभी कभी, तो इसको भी देख लीजिएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अदर क्वेश्चन। एक्स वाई स्कूल हैज 620 बॉयज एंड 500 गर्ल्स। ओके, ये है इसमें। आगे चलते हैं। द स्कूल डिसाइड टू डिवाइड देम इन इक्वल सेक्शंस ऑफ ओनली बॉयज और ओनली गर्ल्स अलोन। हाउ मेनी मिनिमम सेक्शन विल बी फॉर्म? तो दिस इज सेइंग कि 620 बॉयज हैं, 500 गर्ल हैं। ऐसे सेक्शन बनाने हैं जिसमें इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे सिर्फ या तो बॉयज ही या गर्ल्स ही, बट इक्वल नंबर होने चाहिए। कि जैसे हर सेक्शन में इक्वल या तो इक्वल नंबर ऑफ बॉयज होंगे, और अगर दूसरे सेक्शन में गर्ल्स हैं तो सिर्फ गर्ल्स ही होंगी, पर इक्वल नंबर की ही होंगी वो। तो ऐसे कितने सेक्शंस बन जाएंगे? तो इसमें क्या करना है, वो ऐसा नंबर वही होगा जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, सबसे बड़ा नंबर। तो वो क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो बस कुछ नहीं, एचसीएफ निकालो किसका, 620 और 500 का। तो 620 को एक्सपैंड कर दो फटाफट से, 31 इंटू योर 2 इंटू 5, देन इज योर 500। इसको एक्सपैंड कर दीजिए, 5 इंटू 2 इंटू 10, ये 10 बन गया, इंटू 2 इंटू योर 5। देखो दिस इज योर 10 10 100 एंड 5, तो ये 500। अब कॉमन चेक कर लेते हैं दोनों में क्या है। देखो 2 टू द पावर 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 टू द पावर 2 आ रही है, ये कॉमन हो गया 5 वन टाइम। यहाँ भी आ गया 5, 31 नहीं आ रहा, तो कॉमन आ गया क्या, एचसीएफ। एचसीएफ आ जाएगा आपका 2 टू द पावर 2 इंटू योर 5, देन इट इज योर 4 इंटू 5 इज 20। तो हर सेक्शन में सिर्फ 20 बच्चे होंगे। अब ये कह रहा है कि हाउ मैनी मिनिमम सेक्शन विल बी फॉर्म। सो सेक्शन कितने बनेंगे? देखो 620 तो बॉयज हैं, तो बॉयज को कितने सेक्शन बन जाएंगे, डिवाइड करो 20 से, 2 0। तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, 31, ठीक है। फर्दर आपके पास गर्ल्स कितनी है, 500। तो गर्ल्स के सेक्शन बनाने के लिए हर हर सेक्शन में कितनी गर्ल्स है, 20। तो कितने सेक्शंस बनेंगे आपके, तो 20 से डिवाइड करो, तो दिस इज योर 25। तो सेक्शंस फॉर्म्ड विल बी योर 31 प्लस 25, दिस इज योर 6 एंड योर 5, तो 56 आ जाएगा। तो आपका आंसर सी है। Okay, now let's move on to next question. A milkman has 70 liters of buffalo milk, okay, 50 liters of cow milk and 65 liters of camel milk. He wants to pack them in bottles of equal size. ठीक है। अब इक्वल साइज की बॉटल ये है कि ऐसी बॉटल होगी वो कि जिसमें ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिल्क भी आ जाएंगे और कोई मिल्क बचेगा भी नहीं, ठीक है। विदाउट मिक्सिंग लिखा हुआ है। व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ बॉटल्स, बॉटल्स कितनी लगेंगी टोटल, ठीक है। तो वो फाइंड करने के लिए पहले एक ऐसी साइज की बॉटल ढूंढनी पड़ेगी जिसमें ये सारा के सारे जो मिल्क है वो फिल हो जाए और कोई भी मिल्क बचे ना, मतलब इक्वल ऐसी साइज की बॉटल जिसमें आपका 70 लीटर मिल्क भी, 70 लीटर की एक क्वांटिटी भी आ जाए, 50 की एक क्वांटिटी भी और 65 की, पर मिक्स नहीं करना, अलग अलग ही आएंगी, पर सारा मिल्क भी यूज अप हो जाए, ऐसी एक कॉमन क्वांटिटी ढूंढनी है। तो उसके लिए क्या करना होता है, आपको एचसीएफ निकालना है। ऐसा एक नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा सबसे बड़ा, वही वो उतने ही लीटर की बॉटल होगी वो। तो बस कुछ नहीं करना, आप इसका वो ले लो, 50 ले लो। 50 आपके पास क्या था अगला, 50, देन यू हैव 65 एंड 70, इनका आपको एलसीएम लेना है, एचसीएफ सॉरी। तो 50 को आप ब्रेकअप करो, दैट इज योर 2 इंटू 5 देन योर 65 इज योर 13 इंटू योर 5 एंड देन इज योर 70, दैट वुड गिव मी 7 इंटू 5 एंड कॉमन चेक कीजिए, 5 है, 5 है, 5 है, बाकी और कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका आंसर आपका 5 आ गया। तो वो 5 लीटर की बॉटल होनी चाहिए, ठीक है। तो 5 लीटर की बॉटल अगर आप लोगे तो 70, 50 और 65 लीटर ऑफ मिल्क इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो बॉटल्स कितनी चाहिए, तो ये वाला मिल्क 50 था, तो इसकी कितनी बॉटल्स बनेगी, 50 किसका था, आपके पास काव का, तो काव की बॉटल्स बनेगी 5 डिवाइडेड बाय 50, काव की 10 बॉटल्स बनेगी। अगला है 70, तो 70 किसके थी, 70 लीटर मिल्क बफेलो का है,
तो बफेलो की कितनी बॉटल बचेंगी, डिवाइड बाय 5, तो दिस विल गिव मी योर 14। देन यू हैव कैमल, कैमल का है आपके पास कितना मिल्क, 65 लीटर्स, तो 65 डिवाइड बाय 5, so दिस इज योर 13। तो योर आंसर वुड बी 14 बॉटल्स जो होंगी। देखिए आपके पास बफेलो की 14 बॉटल्स, कैमल की 13 और काउ की 10 बॉटल्स होंगी, तो द नंबर यू विल बी गेटिंग इज 37। तो 37 बॉटल्स में वो मिल्क आ पाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। Three boys, A, B, and C can complete a run around a circular track in 5, 10, and 16 minutes, respectively. After how many minutes will they meet at the starting point? ये वही वाला है कि देखिए अब सबसे ज्यादा तेज भाग रहा है ए वाला, क्योंकि 5 में कंप्लीट कर रहा है, फिर दूसरे पे 10 वाला है, फिर 16 है। दैट मीन्स दैट अल्टीमेटली देयर वुड बी टाइम व्हेन योर ultimately there would be a time when your A would be able to cross over B and B would be able to cross over C and A would be crossing both of these and एक पॉइंट पे आके वो मिलेंगे। वो पॉइंट कब होगा, वो टाइम तब आएगा जो कि एक ऐसा नंबर होगा जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा, तभी तो ना, क्योंकि उस टाइम को कवर करने के लिए इन तीनों के वो टाइम्स रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, इजंट इट? तो इसमें आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेते हैं इसका। आपके पास है 5, 5 के एलसीएम आ गया 5 इंटू 1, देन इज योर सॉरी एलसीएम नहीं, फैक्टर्स आ गए। 10 का 2 इंटू 5 एंड देन इज योर 16, तो 16 का यू विल हैव 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। नाउ एलसीएम के केस में क्या करते हैं हम, एलसीएम के केस में हम करते हैं कि जो भी प्राइम फैक्टर्स की मैक्सिमम पावर, तो ये प्राइम फैक्टर 2 था, इसकी मैक्सिमम पावर 4 है, तो 2 टू द पावर 4। दूसरा प्राइम फैक्टर 5 है, इसकी मैक्सिमम पावर सिर्फ 1 है, तो इसका आपका एलसीएम आ जाएगा 2 टू द पावर 4 इंटू योर 5, दैट इज योर 16 into 5, that is 80. So they will meet आफ्टर 80 मिनट्स, 80 मिनट्स के बाद वो फिर से एक ही पॉइंट पे मिल जाएंगे। आई होप दिस क्लियर टू यू। So with this, we are done with the concept of HCF and LCM. In this video, we have covered almost all the concept and the type of question which UPSC asks about HCF and LCM. I have already covered it into this lecture. So you see this lecture, it has lot of illustration. Each of your concept would be clear, and this type of questions only are asked. Okay. And one thing I would like to share over here is that कॉम्प्रीहेंशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉम्प्रीहेंशन में अपनी कमांड बनाइए, रोज कॉम्प्रीहेंशन को प्रैक्टिस कीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस